Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 3 डेमोक्रेसी एट वर्क लेसन 18 लोकल गवर्नमेंट्स एंड फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up next topic which is urban local government. While Vijay was trying to appreciate various aspects of the Panchayati Raj system, the teacher asked him if you knew about the local government institutions functioning in the city where he had and his family had shifted from the village. Vijay wanted to know if such institutions exist in urban area too. The teacher said yes, they do. As Panchayati Raj system is meant for rural area, similarly there are institutions of urban local government. There are three types of urban local bodies: municipal corporations for the big cities, municipal councils for all other cities with smaller population, and Nagar Panchayats for transitional areas, semi-urban areas. But a significant difference between Panchayati Raj institution (PRIs) and the urban local bodies is that while the PRIs are closely linked with one another, the urban local bodies are independent. In one state, there may be all the three types of urban local bodies. In one big city, a municipal corporation; in another small city, a municipal council; and in yet another small town, a Nagar Panchayat. But they are not linked with one another. जब विजय कोशिश कर रहे थे कि वो पंचायती राज सिस्टम के हर एक पहलू से की जानकारी रखे, तभी उनसे जो उनके शिक्षक होते हैं ना उनके गांव के, वो पूछते क्या है कि क्या आप जब गांव से शहर की ओर शिफ्ट किए हो तो वहां पे भी जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है जो फंक्शन करता है या नहीं। तो विजय इसके बारे में जानना चाहते थे कि क्या सच में शहरी क्षेत्र में भी ऐसे इंस्टीट्यूशन फंक्शन करते। तब टीचर क्या बोलते, यस, ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है वो शहरी क्षेत्र में भी फंक्शन करते हैं। पंचायती राज सिस्टम का मतलब ही होता है कि वो जैसे कि ग्रामीण एरिया में वर्क करते हैं, वैसे ही ये इंस्टीट्यूशन शहरी क्षेत्र में भी वर्क करते हैं। और ये थ्री टाइप्स के अर्बन लोकल बॉडीज है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के लिए, म्युनिसिपल काउंसिल छोटे शहरों के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, और जो नगर पंचायत है वो ट्रांजिशनल एरियाज, दैट इज जो जिस शहर का अच्छे से विकास नहीं हुआ, मीन्स वो ग्राम से मिला हुआ हो, मीन्स गांव और आधा शहर हो, उसके लिए है। लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का और अर्बन लोकल बॉडीज का, वो क्या है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है और हमारा जो ये अर्बन लोकल बॉडीज है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, और जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो इंडिपेंडेंट है। और ये एक स्टेट में ये थ्री टाइप्स के हो सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल, और उससे भी जो छोटा टाउन हो गया उसमें नगर पंचायत। लेकिन ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते हैं। It was during the British colonial rule that the first urban local government came into existence in 1688, when a municipal corporation was formed in the city of Madras, now known as Chennai. Later on, similar bodies were formed for the administration at Calcutta, Kolkata, and Bombay, Mumbai. At that time, these municipalities were formed to help in the matter of sanitation and prevent epidemics. These local bodies also had a few civic functions like managing water supply and drainage, but these bodies were not given the required powers, finance, and authority. Initially, most of the members were nominated. Our national leaders also had felt the importance and need of such an organization for local administration and linked these bodies to the planned development of the country. But nothing fruitful could be achieved without finance, and the finance was missing. But even then, the system proved to be an effective tool of administration. During the British rule, many changes were made in urban local bodies. Gradually, certain structural
changes were made, powers of the local bodies were enhanced, and some funds were also provided. तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बारे में पहली बार अर्बन लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में 1688 में, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ मद्रास शहर में, जिसे अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। उसके बाद वैसे ही जो बॉडीज का निर्माण हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलकत्ता में, जिसे अभी कोलकाता के नाम से जानते हैं, और बॉम्बे, मुंबई, ठीक है। और उस समय जो ये म्युनिसिपैलिटीज थे, इनका निर्माण सैनिटेशन और एपिडेमिक्स को रोकने के लिए हुआ था। और ये जो लोकल बॉडीज है, इनके पास कुछ सिविक फंक्शंस है, जैसे कि वाटर सप्लाई को मैनेज करना और ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करना। लेकिन ये जो बॉडीज है, उन्हें जो भी रिक्वायर्ड पावर्स थे, फाइनेंस थे और ऑथोरिटी थी, वो नहीं दिया गया था। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे। हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, उनको भी ये इम्पोर्टेंस महसूस हुई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ये बॉडीज मिलके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लान कर सके। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसका कोई भी परिणाम नहीं मिल सका, क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से कोई भी चीजें की सहायता नहीं की जा रही थी। आर्थिक जो विकास था वो तो मिसिंग था। लेकिन ये जो सिस्टम है उसे प्रूफ किया गया और इसे एक असरदारक रूप में इसे बनाया गया। और ब्रिटिश जब चेंज हुआ तो अर्बन लोकल बॉडीज को भी चेंज किया गया, ठीक है। इसमें ग्रेजुअली कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस बनाए गए, पावर्स लोकल बॉडीज को दिए गए और कुछ फंड्स भी प्रोवाइड किए गए इनके अच्छे से फंक्शन करने के लिए। After independence, 4 types of urban local bodies were functioning: municipal corporation, municipalities, town area committees, and notified area committees. But the 74th Constitutional Amendment 1992 brought about major changes in the system of urban local government. Now, 3 types of urban local governments are functioning: municipal corporation for the big cities, municipal councils for smaller cities, and Nagar Panchayat for those areas that are in transition from रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। आजादी के बाद 4 प्रकार के जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो फंक्शन कर रहे थे: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरिया कमिटीज और नोटिफाइड एरिया कमिटीज। लेकिन जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ, तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ हमारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट में। अब यहाँ पे 3 प्रकार के अर्बन लोकल गवर्नमेंट फंक्शन कर रहे हैं। एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के लिए, म्युनिसिपल काउंसिल छोटे शहरों के लिए, और जो नगर पंचायत है उस क्षेत्र के लिए जहाँ जो ग्रामीण इलाका है वो उनका ट्रांजिशन हो रहा है शहरी क्षेत्र में। The 74th Constitutional Amendment 1992. As stated above, the 74th Constitutional Amendment Act 1992 brought about significant changes in the structure and functioning of urban local government. The following points are noteworthy: Constitution of urban local bodies, namely municipal corporation, municipal council, and Nagar Panchayat in every Indian state. Constitution of wards committees within the territorial area of a municipality to ensure people's participation in civic affairs at the grassroots level. Regular and fair conduct of municipal elections by state election commissions. Provision for separation of municipal governments for not more than 6 months. Adequate representation of weaker section status, scheduled castes, scheduled tribes, backward classes of the society, and women in municipal governments through reservation of seats. Specification by law through the state legislatures of the powers, including financial and functional responsibilities, to be entrusted to municipalities and wards committees. Constitution of State Finance Commission on it every 5 years to review the financial position of municipalities and to make recommendations on the measures needed to improve their financial position. And Constitution of a District Planning Committee at the district level and a Metropolitan Planning Committee in metropolitan areas of every state for the preparation and consolidation of development plans. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें 1992 में हुआ था, इसमें बहुत ही बड़ा चेंजेस हुआ हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन में अर्बन लोकल गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग के नोट करने लायक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अर्बन लोकल बॉडीज का, जिसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत बोला जाता है, वो इंडियन स्टेट में है, ठीक है। जितने भी इंडियन स्टेट है सभी में है।
जो वार्ड कमिटीज है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो टेरिटोरियल एरिया है म्युनिसिपैलिटीज का, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो पीपल है वो पार्टिसिपेट करे सिविक अफेयर्स में ग्रास रूट लेवल पे। और यहाँ पे रेगुलर और फेयर कंडक्ट म्युनिसिपल इलेक्शंस होगा, जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा स्टेट इलेक्शंस कमीशन के द्वारा। और यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है कि जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स है उनका सेपरेशन 6 मंथ्स तक से ज्यादा ना हो सके। और यहाँ पे एक जो भी वीकर सेक्शंस है हमारे सोसाइटी के, उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस सोसाइटी के, और जो विमेन है म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स में, उनका रिजर्वेशन के द्वारा उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके। यहाँ पे जो भी लॉ बनाए गए हैं या स्टेट लेजिस्लेचर्स में, और जो पावर्स है फाइनेंशियल और फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे भी म्युनिसिपैलिटीज और वार्ड कमिटीज देखती है। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, जो कि प्रत्येक 5 साल में इनका रिव्यू होता है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है म्युनिसिपैलिटीज का, उसमें रिकमेंडेशंस होते हैं कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके। हमारा जो संविधान है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, और मेट्रो प्लानिंग कमेटी मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए प्रत्येक स्टेट में होते हैं। और इसमें जो भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनका प्रिपरेशन होता है और कंसोलिडेशन होता है। Municipal corporations composition. Municipal corporations are established in big cities according to the provisions made in the act enacted by the state legislatures. The councillors of municipal corporations are elected for 5 years. The elected councillors elect one of them as mayor annually. The mayor is known as the first citizen of the city. The 74th constitutional amendment has provided for reservation of not less than 1/3 of the total seats for women. There is also a provision of reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes, and other weaker sections in proportion to their population. All of these reserved seats for scheduled caste and scheduled tribes, 1/3 would be reserved for women belonging to these communities. In the event of dissolution of municipal corporation, the elections will be held within 6 months. There is an official post of municipal commissioner, who is the chief executive officer and is appointed by the state government. In case of union territories like Delhi, it is done by the central government. तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी स्थापना हुई बड़े शहरों के लिए, और इसके अनुसार ये जो एक्ट है उसके अनुसार ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा किया जाता है। जो भी काउंसिलर्स होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, उन्हें 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, और ये जो इलेक्टेड काउंसिलर्स है वो एनुअली मेयर बनते हैं। और ये जो मेयर है इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी के नाम से जानते हैं कि ये सिटी के पहले सिटीजन है। और जो हमारा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें प्रोवाइड किया गया कि यहाँ पे जो सीट की जो रिजर्वेशन है 1/3 पार्ट वो विमेन के लिए होगा, टोटल सीट्स का 1/3 पार्ट। और यहाँ पे एक और प्रोविजन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, और जो भी वीकर सेक्शन है पॉपुलेशन के, उनके सीट्स का रिजर्वेशन होगा। और ये जो रिजर्व शीट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इसमें से जो 1/3 पार्ट होगा वो विमेन के लिए रिजर्व होगा, जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करती है। इस इवेंट में जो अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिसोल्यूशन होता है तो उस डिसोल्यूशन के बीच में ही 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑफिशियल पोस्ट है म्युनिसिपल कमिश्नर का, जिसे हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोलते हैं, जो इस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और यूनियन टेरिटरीज के केस में जैसे कि दिल्ली में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। Functions of the municipal corporations. The main functions of the municipal corporations are as follows. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंक्शन। हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, responsible for cleanliness of the city, disposal of garbage, maintenance of hospitals and dispensaries, promoting and conducting vaccination drives, taking off adulteration etc. तो हेल्थ और सैनिटेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर को साफ करे, साथ में जो भी गार्बेज है उसको डिस्पोज करे, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी का वो मेंटेन करके रखे, साथ में वैक्सीनेशन को प्रमोट और कंडक्ट करे, और ये एडल्ट्रेशन जो होता है उसे चेकआउट करते रहे। Electricity and water supply, provision and maintenance of street lights, supply of electricity, supply of safe drinking water, construction of infrastructure and providing facilities for water supply, maintenance of water tankers etc.
तो ये इनका काम है कि ये हम लोग के लिए स्ट्रीट लाइट्स का जो भी है उसको मेंटेन करके रखे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पे ये लोग ध्यान दें, साथ में इनका एक प्रोविजन होता है कि ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाए और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करे, साथ में ये वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करे और जो भी वाटर टैंकर्स है उनको वो मेंटेन करके रखे। Educational establishment of primary schools, provision of midday meals and other facilities for the children. तो इनका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना करे और बच्चों के लिए मिड डे मील्स की व्यवस्था करे, साथ में और भी कई फैसिलिटीज बच्चों के लिए है। Public works, construction maintenance and naming of roads, framing rules for the constructions of houses, markets, restaurants and hotels, removing of encroachments and demolition of dangerous buildings. तो इनका पब्लिक वर्क्स में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम, मेंटेनेंस का काम और रोड्स की नेमिंग का काम करे, साथ में ये हाउसेस के कंस्ट्रक्शन के लिए रूल को फ्रेम करे और जो भी हाउसेस है, मार्केट्स है, रेस्टोरेंट्स और होटल्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं उनके लिए रूल्स बनाना चाहिए कि उनको किस हालात में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए और जो भी डेंजरस बिल्डिंग्स है उनके इंक्रोचमेंट और डिमोलिशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इनके पास होता है। Miscellaneous functions, maintaining record of births and dates, provision and maintenance of cremation grounds, burial grounds, night shelters, making arrangement of scooter and taxi stands and public facilities. तो इनका एक miscellaneous function भी है कि ये birth का जो रिकॉर्ड है या फिर जो डेथ की रिकॉर्ड है उसे ये मेंटेन करके रखे, साथ में ये जो भी हमारा शमशान घाट होते हैं ना जहाँ पे लोगों को जलाए जाते हैं या फिर डाले जाते हैं जमीन के अंदर, तो वहाँ का भी ये प्रोविजन इनके पास ही होता है कि ये इस चीज को मेंटेन करके रखे, साथ में ये जो रात में जो आश्रय लेने की जगह होती है ये भी इनको प्रोवाइड करवाना होता है और ये स्कूटर और टैक्सी स्टैंड्स और जो भी पब्लिक फैसिलिटीज है उनको का भी अरेंजमेंट यही लोग करवाते हैं। Discretionary functions, entertainment provision of parks, auditoriums, etc. तो जो भी entertainment है, parks का जो provision है, auditoriums है, वो भी इनका ही function होता है। Culture, organizing music, dramas, painting and other art shows and activities like maintenance of libraries and museums. तो ये इनका सांस्कृतिक चीजों में भी इनका फंक्शन होता है, जैसे कि म्यूजिक, ड्रामास या जो पेंटिंग्स होते हैं या फिर जो अदर आर्ट के वर्क्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन करना और साथ में लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स का मेंटेनेंस करना। Sports activities, provision of playgrounds for various games and also arranging sports competition and tournaments. तो प्लेग्राउंड का भी प्रोविजन यही लोग करते हैं, साथ में जो अलग अलग प्रकार के जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स और टूर्नामेंट्स, उनका भी अरेंजमेंट यही लोग करते हैं। Welfare services, setting up and maintaining community halls, running public distribution system, implementing family welfare schemes and also schemes for the welfare of scheduled castes, scheduled tribes and backward classes. तो ये वेलफेयर सर्विसेज को भी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि ये सेट करते हैं, मेंटेन करते हैं कम्युनिटी हॉल्स को और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, और ये लागू करते हैं फैमिली वेलफेयर स्कीम्स और साथ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ मेयर, Mayor is elected as the head of the municipal corporation and performs the following important functions. तो हम लोग यहाँ पे मेयर के मेन फंक्शंस को देखने वाले हैं। जो मेयर होते हैं वो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं और इनके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड मेंटेन्स डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द मीटिंग्स। तो ये मीटिंग्स जो भी होते हैं कॉर्पोरेशन के उसके ऊपर ये देख रेख करते हैं और साथ में ये जो भी चीजें मीटिंग्स में होते हैं डेकोरम और डिसिप्लिन, ये इस चीजों को भी ये देखते हैं। Acts as a link between councillors and the state government. तो ये councillors और state government के बीच में लिंक का वर्क करते हैं मेयर। Receives foreign dignitaries visiting the city, और ये foreign dignitaries जो भी होते हैं ना उनके विजिटिंग को भी ये रिसीव करते हैं कि ये उनके शहर में विजिट करने वाले होते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चलिए हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इनकम का सोर्स देखते हैं।
Like Panchayati Raj system, municipal system also requires funds for the development and welfare activities in its area. Provision is made in the Municipal Act for generating the required funds. Some of the sources of income are as follows. तो जैसे पंचायती राज सिस्टम वैसे हमारे जो म्यूनसिपल सिस्टम है उनके पास में रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की ताकि वो अपने एरिया के डेवलपमेंट कर सके और वेलफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। तो जो म्यूनसिपल एक्ट है वो जनरेट करते हैं फंड्स को रिक्वायरमेंट का। और यहाँ पे हम लोग कुछ सोर्स देखते हैं हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उनको कहाँ से इनकम होता है। Income from taxes. Municipal corporation imposes taxes on various items such as house tax, entertainment tax, tax on hoardings and advertisements, registration fees, tax on buildings plans, etc. तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत सारे ऐसे आइटम से टैक्स लगाते हैं, जैसे कि हाउस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, और जो भी होर्डिंग्स और एडवर्टीजमेंट होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं और बिल्डिंग प्लान्स के ऊपर भी टैक्स लेते हैं। तो इनसे इनका इनकम होता है। अदर फीस एंड चार्जेस, दिस इंक्लूड वाटर सप्लाई चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सीवर चार्जेस, license fee from shopkeepers and toll tax and octroi duty। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो हमारे इसमें कौन से चार्जेस उनको देना पड़ता है, तो वाटर सप्लाई का चार्ज देना पड़ता है हम लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना पड़ता है, जो भी नाली वगैरह होते हैं सिवर चार्जेस उनका भी चार्ज देना पड़ता है, लाइसेंस फी भी देते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं, और टोल टैक्स के साथ हम लोग ऑक्ट्रोई ड्यूटी की भी टैक्सेस देते हैं। Grants in aid. State government and union government provide grants in aid for various projects and programs related to the development। तो साथ में इन लोगों को ग्रांट्स भी मिलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं या जो यूनियन गवर्नमेंट होते हैं वो इन्हें इस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे भी देते हैं। इनकम फ्रॉम रेंट्स, कॉर्पोरेशन रेंट्स out the properties and get rent for various shops, kiosks, community centers, barat ghars and various sites for fairs, मैरिजेस और अदर एग्जीबिशंस। तो इन्हें अलग अलग चीजों से रेंट भी मिलती है, जैसे जो कॉर्पोरेशन है वो प्रॉपर्टीज का रेंट लेती है, और भी कई चीजें जैसे दुकान का कियोस्क हो गया, हम लोग का कम्युनिटी सेंटर्स हो गया, बारात घर हो गया, और भी ऐसे कई साइट्स होते हैं जहाँ पे फेयर्स मीन्स मेले लगते हैं, शादी विवाह होती है, और जो भी अदर एग्जीबिशंस होती हैं उन्हें यहाँ से इनकम प्राप्त होती है। Municipal councils composition. Cities which do not have very large population have municipalities known as municipal councils to look after the local cities, their problems and developmental work. After the 74th Amendment, the Constitution of Municipalities is obligatory for every concerned city. Every municipal council has councillors who are elected by the adult voters of the city for 5 years. Only those persons can be elected as councillors who fulfill the conditions laid down by the State Election Commission. If in any case the municipal councils get dissolved before completing the full term of 5 years, the elections for a new municipal council will have to be held within 6 months. Chairperson or president of the municipal council is elected by the councillors from among the elected members. Chairperson holds the office till he or she enjoys the confidence of the majority of the elected members. Every municipal council has an executive officer who is appointed by the state government. He or she looks after the day-to-day work and also the administration. The health officer, tax superintendent, civil engineer and other are the important officials. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंपोजिशंस में क्या किया है म्यूनसिपल काउंसिल के। जो सिटीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है उन्हें वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज होते हैं जिसे हम लोग म्यूनसिपल काउंसिल्स के भी नाम से जानते हैं, और ये लोकल सिटीज को देखभाल करते हैं, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जो डेवलपमेंटल वर्क होते हैं उनकी ये लोग देखभाल करते हैं। जो 24th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो म्यूनसिपैलिटीज है वो एक ऑब्लिगेटरी है, हर एक सिटी के लिए में जरूरी है, और जितने भी म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं उनके काउंसिलर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं एडल्ट वोटर्स के द्वारा 5 साल के लिए,
और वही पर्सन इलेक्ट किए जाएंगे काउंसलर के रूप में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी कंडीशन है उनका वो फुलफिल करते हैं। और किसी भी केस में जो म्युनिसिपल काउंसिल्स है उनका डिसॉल्वमेंट होता है, जब तक कि उनका अगर 5 साल में नहीं होता तो उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। और इलेक्शन जो है वो न्यू म्युनिसिपल काउंसिल के लिए हो सकता है 6 महीने के अंदर ही। और जो चेयरपर्सन या जो प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल के वो भी इलेक्ट किए जाते हैं काउंसलर्स के द्वारा, इलेक्टेड मेंबर्स में से ही। और जो चेयरपर्सन है वो ऑफिस को तब तक होल्ड कर सकते हैं और तब तक उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं जबकि जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनका मेजोरिटी उनको मिलता रहे। और जितने भी म्युनिसिपल काउंसिल है उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वो जो भी प्रतिदिन का काम होता है उसकी देखभाल करते, साथ में वो एडमिनिस्ट्रेशन की भी वर्क को देखते हैं। और जो हेल्थ ऑफिसर होते हैं, टैक्स सुपरिटेंडेंट होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स है हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के। Functions of the municipal council. Functions of the municipal council are as follows. तो यहाँ पे हम लोग म्युनिसिपल काउंसिल के फंक्शंस को देखते हैं। हेल्थ एंड सैनिटेशन, मैनेजिंग क्लीनलीनेस ऑफ द टाउन, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, प्रिवेंशन ऑफ सेल ऑफ अनहाइजीनिक एंड अडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स। तो शहर की साफ सफाई को ये मैनेज करते हैं और कचरों को ये डिस्पोज करते हैं। फिर ये रोक लगाते हैं जो भी अनहाइजीनिक या फिर एडल्ट्रेटेड फूड है, मिलावटी जो भोजन सामग्री है उसके ये बिक्री पे रोक लगाते हैं और साथ में ये डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स को भी मेंटेन करते हैं। Electricity and water supply, ensuring supply of electricity and safe drinking water, maintaining water tanks and also water tankers। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को इंश्योर करते हैं, साथ में ये जो भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है और वाटर टैंक्स को ये मेंटेन करते हैं। एजुकेशन, मेंटेनिंग एंड रनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एंड लिटरेसी सेंटर्स। तो ये शिक्षा के में भी फंक्शन करते हैं ये कि ये जो भी प्राइमरी स्कूल्स होते हैं इसको ये मेंटेन करते हैं, उसको चलाते हैं। और जो भी लिटरेसी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जाती है। बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, कीपिंग द रिकॉर्ड रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द सिटी और टाउन एंड ऑल्सो इश्यूइंग द सर्टिफिकेट्स फॉर द सेम। तो ये रिकॉर्ड भी रखते हैं डेथ और बर्थ का अपने शहर का और साथ में इस चीज के लिए वो सर्टिफिकेट भी इश्यू करते हैं। Public works, paving of streets, repairing and maintenance of municipal roads, constructions and maintenance of बारात घर, community halls, markets, public facilities etc. तो ये public works भी करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट्स को बनाना, साथ में जो भी म्युनिसिपल जो रोड्स होते हैं उसको रिपेयर और मेंटेन करना। और ये भी बारात घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं और कम्युनिटी हॉल्स को ये मेंटेन करते हैं। मार्केट और पब्लिक फैसिलिटीज का भी ये ध्यान देते हैं। Sources of income. No work can be done without money. Municipal councils have got different sources of income. These sources can be grouped as under. तो कोई भी काम बिना पैसों के नहीं हो सकता। जो म्युनिसिपल काउंसिल है इनके पास भी अलग अलग इनकम के स्रोत होते हैं और ये जो स्रोत है यहाँ पे दिया गया है। टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये भी टैक्सेस देते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। रेंट्स एंड फीस, चार्जेस फॉर वाटर सप्लाई, सीवर सिस्टम, लाइसेंस फीस, रेंट्स ऑफ कम्युनिटी हॉल्स, बारात घर एंड शॉप्स एक्सेट्रा। तो ये वाटर सप्लाई की चार्जेस करते हैं, सीवर सिस्टम के ये लोग चार्ज लेते हैं, लाइसेंस फीस लेते हैं, रेंट्स और जो भी कम्युनिटी हॉल्स के होते हैं, बारात घर और या फिर दुकान होता है उनकी भी ये लोग रेंट लेते हैं। ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट से भी इनकम होता है, फंड दिया जाता है। फाइन्स फ्रॉम द टैक्स ऑफेंडर्स, लॉ ब्रेकर्स और इंक्रोचमेंट्स एक्सेट्रा। तो वैसे लोग जो लॉ को ब्रेक करते हैं और जो भी ऑफेंडर्स होते हैं उनसे ये फाइन्स भी लेते हैं और यहाँ से भी इनका एक अच्छा खासा इनकम हो जाता है। Nagar Panchayat, an urban center with more than 30,000 and less than 100,000 inhabitants has a Nagar Panchayat. 100,000 means 1 lakh, okay? However, there are some exceptions. All the previous town area committees, urban centers with a total population of more than 5,000 and less than 20,000 are designed as Nagar Panchayats. It is composed of a chairperson and ward members. It may have a minimum of 10 elected ward members and 3 nominated members. Like other municipal bodies, Nagar Panchayat is responsible for cleanliness and disposal of garbage, supply of drinking water, maintenance of public amenities like street lights,
parking space and public conveniences, setting up and maintaining fire services, and registration of deaths and births. Its sources of income are taxes such as house tax, water tax, toll tax, license fees, and fee for approving building plans. Rents collected by renting Bharat Ghars and other properties and granting aid from the state government. तो जो हमारा ये नगर पंचायत है वो एक अर्बन सेंटर है जहाँ पे 30,000 से ज्यादा पॉपुलेशन और 1 लाख से कम हो, ठीक है। यहाँ पे नगर पंचायत का प्रोविजन होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है। और जैसे भी जो भी प्रीवियस जो टाउन एरिया थे, कमिटीज थे, अर्बन सेंटर्स जहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन था वो ज्यादा से 5,000 से ज्यादा होना चाहिए और 20,000 से कम, और वहां के लिए डेजिग्नेट किए गए थे नगर पंचायत। और इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं और वार्ड मेंबर्स होते हैं इनके कंपोजिशन में, और इनके जो मिनिमम जो इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं और 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और अदर जो भी हमारे म्युनिसिपल बॉडीज है उनके जैसे जो हमारा नगर पंचायत है वो भी जिम्मेदार किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल, तो जो भी कचरा है उसके साफ सफाई के लिए, उसके डिस्पोजल के लिए, और ये भी हम लोग को प्रोवाइड करवाते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एंड ये भी पब्लिक एमिनिटीज जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गया, पार्किंग स्पेस हो गया, पब्लिक कन्वेनियंसेस हो गया, जहाँ पे लोगों की सुविधा हो सके, पब्लिक कन्वेनियंसेस, ये इनको मेंटेन करना। साथ में ये फायर सर्विसेज को सेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, और डेथ और बर्थ के रजिस्ट्रेशन को भी ये लोग देखते हैं। इनका जो भी इनकम का सोर्स है वो है हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, लाइसेंस फीस हो गए, और इनका जो भी बिल्डिंग प्लान्स के फी होते हैं ना उनके अप्रूवल से इनको फी मिलता है। और जो भी बारात घर या फिर अदर प्रॉपर्टीज है उनसे ये लोग रेंट कलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ इनको स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 18.3। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.